7 بھارتی اسپانسرڈ خوارج جہنم واصل۔ فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن نعمان سلیم سمیت 6 جوان شہید ہو گئے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کیپٹن نعمان سلیم سمیت 6 جوانوں کو خراج عقیدت۔ پاکستان نے افغان طالبان سے مذاکرات ناکام ہونے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، دہشت گردوں، ان کے ٹھکانوں اور سہولت کاروں کو نیست و نابود کیا جائے گا۔ افغان طالبان رجیم اپنی بقا کے لیے جنگی معیشت پر انحصار کرتی ہے۔ طالبان حکومت افغان عوام کی نمائندہ نہیں۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات ناکام، افغان طالبان کا بنیادی نقطے سے انحراف، ذمہ داری قبول کرنے سے بھی انکار۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بتایا، دوحہ میں استنبول میں مذاکرات کا واحد ایجنڈا افغانستان سے دہشت گردی روکنا تھا۔ افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا، پاکستان کے نقصانات سے بے نیازی دکھائی۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد پیش کیے۔ افغان طالبان اور میزبان ممالک نے شواہد تسلیم کیے مگر یقین دہانی نہیں کرائی۔ پاکستان نے افغان طالبان سے دوحہ معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے واضح کیا کہ پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، دہشت گردوں، ان کے ٹھکانوں اور سہولت کاروں کو نیست و نابود کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل بروئے کار لائے گی۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے، بھارت افغان طالبان کو استعمال کر رہا ہے۔ امریکہ اور چین سمیت عالمی برادری پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے افغان طالبان کو دوبارہ تورا بورا میں دھکیلنے کی دھمکی دے دی۔ خواجہ آصف نے کہا، طالبان چاہیں تو شرمندہ چہرے کے ساتھ دم دبا کر بھاگیں گے۔ یہ خطے کے لوگوں کے لیے ایک نظارہ ہوگا۔ افغانستان سلطنتوں کا نہیں بلکہ اپنے لوگوں کا قبرستان رہا۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سلطنتوں نے اپنا کھیل کھیلا۔ پاکستان انہیں مکمل فنا کرنے اور غاروں میں دھکیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اپنی عسکری طاقت کا ایک جز بھی استعمال نہیں کرنا پڑے گا۔ برادر ملکوں کی درخواست پر، جنہیں طالبان کے انتقامی رویے کی وجہ سے مسلسل درخواستیں کرنا پڑیں، پاکستان نے امن کو ایک موقع دینے کے لیے بات چیت کی، مگر بعض افغان عہدیداروں کے زہریلے بیانات طالبان کے دھوکے باز اور منتشر ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا، پاکستان کو طالبان کے خلاف اپنی پوری عسکری قوت کا حتیٰ کہ ایک جز بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم انہیں مکمل طور پر فنا کرنے اور غاروں کی طرف پسپا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ چاہیں تو تورا بورا میں ان کے شرمناک چہرے دوبارہ دیکھنے کو ملیں گے جب وہ دم دبا کر بھاگیں گے۔ یہ خطے کے لوگوں کے لیے ایک دلچسپ منظر ہوگا۔ آصف نے لکھا کہ یہ افسوسناک ہے کہ طالبان کا یہ حکومتی تسلسل اندھے پن کے ساتھ افغانستان کو پھر ایک تنازع کی طرف دھکیل رہا ہے۔ صرف اپنی چوری شدہ حکمرانی برقرار رکھنے اور اس جنگی معیشت کو بچائے رکھنے کے لیے جو انہیں پالتی ہے، اپنی حدود اور جنگی نعروں کے کھوکھلے پن سے پوری طرح آگاہ ہوتے ہوئے بھی وہ طبل جنگ بجا رہے ہیں تاکہ اپنا شکنجہ برقرار رکھ سکیں۔ اگر افغان طالبان حکومت افغانستان اور اس کے معصوم لوگوں کو پھر برباد کرنے پر اصرار کرتی ہے تو یوں ہی صحیح۔ خواجہ آصف نے لکھا کہ افغانستان عظیم اقوام کا قبرستان بالکل نہیں رہا بلکہ اپنے ہی لوگوں کے لیے ایک قبرستان ہے۔ تاریخ میں آپ ایک ایسی جگہ رہے ہیں جہاں سلطنتوں نے کھیل کھیلا۔ طالبان کو معلوم ہونا چاہیے کہ شاید انہوں نے ہماری ثابت قدمی اور جرت کا غلط اندازہ لگا لیا۔ طالبان حکومت لڑنا چاہتی ہے تو دنیا دیکھے گی کہ ان کے دھمکی آمیز نعرے صرف تماشا بازی ہیں۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہم نے آپ کی خیانت اور تمسخر طویل عرصے برداشت کیا، مگر اب نہیں۔ پاکستان کے اندر کسی بھی دہشت گرد حملے یا کسی خودکش دھماکے کا کڑوا ذائقہ چکھایا جائے گا۔ چاہیں تو ہمارے عزم اور صلاحیتوں کا امتحان لے لے، اس کا انجام آپ کی ہلاکت ہوگا۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی تو افغانستان میں گھس کر حملے کریں گے۔ کابل کی پوری قیادت بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی AIY نیوز سے گفتگو، کہا 4 مرتبہ معاہدہ فائنل ہوا لیکن ہر بار کابل نے انکار کیا۔ افغان طالبان مانتے ہیں ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن تحریری طور پر معاہدہ نہیں کرنا چاہتے۔ ثالث بھی کابل کی نیت کے فطور کو جان گئے ہیں۔ کابل چاہتا ہی نہیں تھا کوئی معاہدہ ہو۔ ورکنگ گروپ تھا، ان کا بھی ورکنگ گروپ تھا۔ جب بھی کوئی چیز فائنلائز ہو جاتی تھی تو ایگریمنٹ بن جاتا تھا۔ 4 دفعہ ہوا ہے میرا خیال ہے، تو وہ کابل فون کرتے تھے اور کابل سے وہ نہ ہو، اس کی وجہ سے ایگریمنٹ نہ ہو سکا۔ کابل کسی مرحلے پہ بھی پولیس نہیں تھا کسی ارینجمنٹ کے لیے۔ وہ ہندوستان کے کہنے پہ
पाकिस्तान के ऊपर एवरेज करना चाहता है, अपनी शिकस्त का बदला वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके कर रहे हैं। काबुल पूरी की पूरी लीडरशिप उनकी हिंदुस्तान के हाथों में खेल रही है। नुकता जिस पे डेडलॉक होता था कि वो मानते थे कि रोकना चाहिए टीटीपी वालों को और इनको ये हमारी सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, सारी बातों में एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन इसको राइटिंग में देने को जा रहे हैं। को भी फ्रीक बनाया जाए मुज़ाकरात में? नहीं, इस किस्म की कोई नहीं है। अगर वो कहते भी इस बात पे तो हमारी तरफ से टोटल इनकार। सालिसों के ऊपर भी ये चीज अया हो गई है कि क्या नीयत है, काबिल की नीयत में जो फतूर है वो सबको मालूम हो गया है। रूस के साथ जो है सिंसेरिटी के साथ ये अटेम्प्ट किया है, करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। उनकी टेरिटरी से इस्तेमाल हुई और उन्होंने तो हमें अगर डीप इनटू अफगानिस्तान भी जहाँ से रिटेलिएट करना पड़ा तो जरूर करेंगे। अडियाला में बैठा शख्स 600 अफराद की हलाकत का ट्वीट करता है। अगर 600 अफराद मारे जाते तो लाशों का ढेर लग जाता। उसकी पार्टी कमज़ोर हो गई तो उसने जेल में बैठकर मज़हब का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, दीन के नाम पर अपना एजेंडा मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है। दीन की आड़ में मज़मूम मकासद नाकाबिल क़बूल हैं। जब कोई सियासी या मजहबी जमात हथियार उठा ले तो वो पुरतशद्दुद जमात बन जाती है। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को अस्करी इदारों पर हमला किया। PTI ने हथियार उठाए तो सियासी जमातों से बाहर निकल गई। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के हुक्म पर अलीमा खानम का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया। अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में अदम पेशी पर अहकाम जारी किए थे। नादरा हुकाम ने अलीमा खानम का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की रिपोर्ट जमा करवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। रियाद के नायब गवर्नर ने शहबाज शरीफ को अलविदा किया। वज़ीर आज़म ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। आलमी रहनुमाओं और सरमायाकारों के वफूद से मुलाकातें की। वो सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मिले। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ्रेमवर्क का आगाज़ किया गया। तीन जजों ने मेरी बानी से मुलाकात कराने का हुक्म दिया, लेकिन उनका फैसला रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, हम आवाज़ उठाएंगे, आइन और कानून के दायरे में रहकर तमाम हरबे इस्तेमाल करेंगे। चाह रहा था कि मैं अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलूं। जब मुझे इजाजत नहीं मिली तो मैं हाई कोर्ट गया। वहाँ पर 3 जजेस बैठे, उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि मुझे मिलाया जाए। हाई कोर्ट इस्लामाबाद से लेकर अडियाला जेल तक गया और वहाँ पर रोक दिया। 3 जजेस के ऑर्डर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। हमने आवाज उठानी है, आइन और कानून के दायरे में रहकर तमाम वो हरबे इस्तेमाल करने हैं जो हमारा आइन हमें इजाजत देता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आवारा गुफ्तगू करते हैं। मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, सुहेल आफरीदी के साथ कोई मसला है, वो तकरीर में कुछ कहते हैं, वैसे कुछ कहते हैं। नफ्सियाती मसला है उनके साथ, उसे वो चेक करवाएं। सुहेल आफरीदी बानी PTI से सियासी मकसद के लिए मिलना चाहेंगे तो कानूनी तौर पर इसकी इजाज़त नहीं है। भी कहा कि दहशत गर्दी लाई जा रही है, यानी कि वो आप लोगों पे इल्ज़ाम डाल रहे हैं। ये आवारा गुफ्तगू है, आवारा गुफ्तगू है। इनका ये कोई ज़हनी आर्जा है, कोई इस किस्म की होते हैं बाद लोग कि वो तकारीर पुछ करते हैं, बाद में जब ये तकरीर के अलावा गुफ्तगू करते हैं तो उस वक्त और तरह की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जब तकरीर शुरू करते हैं तो फिर और तरह की बात करते हैं। इनको कोई साइकोलॉजिकल इनको प्रॉब्लम है, इनको वैसे चेक करवाना चाहिए। आपका ख्याल था ना कि अंदाजे बयान बदलें तो शायद अंदाजे मुलाकात बदल दे हुकूमत, और या फिर अदालत कहे क्लियरली तब भी आप लोग मुलाकात करवा देंगे। ये पॉलिटिकल मशावरत के लिए जाना चाहते हैं तो ये तो वैसे ही इलीगल है, ये जा ही नहीं सकते उन रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक। तो फिर ये सूरत एक हो सकती है क्योंकि ये वहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने जो है वो उनके साथ मशावरत करनी है कैबिनेट फॉर्मेशन की, तो ये एक पॉलिटिकल मसला है और ये रूल्स में इस बात के ऊपर बड़ी वाज़े जो है वो कदगन है कि वहाँ पे कोई पॉलिटिकल जो है वो कंसल्टेशन नहीं हो सकती। पाकिस्तान नेवी की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हो गई। ISPR ने बताया, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। एडमिरल नवीद अशरफ ने समंदरी दिफा में मुस्तकिल जंगी तैयारी की अहमियत पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान नेवी हर किस्म की रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान नेवी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा कर रही है।
پاکستان نیوی قومی خود مختاری کے تحفظ اور سمندری سرحدوں کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ کانفرنس میں آپریشنل تیاریوں، جاری منصوبوں اور آئندہ سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کی تیاریوں پر بھی غور کیا گیا۔ PIMEC پاکستان کی سمندری صلاحیتوں کے اظہار اور علاقائی تعاون کا اہم پلیٹ فارم ہے۔ کانفرنس میں چیف آف دی نیول سٹاف، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور فیلڈ کمانڈرز کی شرکت۔ اجلاس میں اسٹریٹجک ترجیحات، آپریشنل تیاری اور بحری پالیسیوں کی تشکیل پر مشاورت کی گئی۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 31 اکتوبر کو دوبارہ طلب کر لیا گیا۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جمعے کی شام 4 بجے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ آج ایوان صدر میں بھی مشاورتی اجلاس ہوا جس میں بلاول بھٹو سمیت تمام رہنماؤں نے شرکت کی۔ ذرائع کہتے ہیں چودھری یاسین آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ چیئرمین PP بلاول بھٹو نامزدگی کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ پیپلز پارٹی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کب جمع کرائے گی ابھی تک حتمی طور پر طے نہیں ہو سکا۔ ادھر پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم کے ممکنہ امیدوار چودھری یاسین نے سوشل میڈیا پر پیغام دیا کہ ابھی پارٹی نے امیدوار کا باضابطہ اعلان نہیں کیا، کارکن صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود کو تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ PP ذرائع کا کہنا ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود PP حکومت میں صدر کے منصب پر برقرار رہیں گے اور بطور صدر آئینی مدت پوری کریں گے۔ بیرسٹر سلطان گروپ نے پیپلز پارٹی میں باضابطہ شمولیت اختیار کر لی ہے۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں بیرسٹر سلطان گروپ کے 5 ارکان ہیں۔ امریکی صدر نے 2 دن میں چوتھی بار پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر کیا۔ کہا پاکستان کے پاس فیلڈ مارشل ہیں جو بہترین فائٹر اور عظیم انسان ہیں۔ جنوبی کوریا میں کانفرنس سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا 7 طیارے گر چکے تھے، ہم نے کہا جنگ روک دو، وہ رک گئے۔ شہباز شریف کی عزت کرتا ہوں، ان سے اچھے تعلقات ہیں، وہ اچھے انسان ہیں۔ Minister of Pakistan is a great guy, and the field marshal, they have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And I'm reading that 7 planes were shot down. You know, they're warring. They're strong people. Minister Modi is the nicest looking guy. He looks like you'd like to have your father, like, he's a killer. He's tough as hell. No, we will fight. I said, whoa, this is the same man that I know. And after literally 2 days, they called up and they said, we understand, and they stopped fighting. How is that? Isn't that amazing now? Shooting at each other. 7 planes were shot down. You have to stop. Warn for the tariffs. I said I was going to put 250% tariffs on each country, which means that you'll never do business. And they understood that. And within 48 hours, we had no war, no people killed. I mean, it's makes me feel so good. راولپنڈی میں فائرنگ کے 2 واقعات میں 3 نوجوان قتل۔ پولیس حکام نے بتایا تھانہ صدر کی حدود میں فائرنگ سے 2 نوجوان موقع پر جاں بحق ہو گئے، ملزمان بآسانی فرار ہو گئے۔ مقتولین کی شناخت خضر اور وقاص شاہ کے نام سے ہوئی جن کی عمریں 22 سے 24 سال تھی۔ راولپنڈی کے تھانہ رتا امرال کے علاقے میں بھی ایک نوجوان کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ مقتول کی شناخت خضر کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس حکام نے بتایا 3 حملہ آوروں کی شناخت کر لی گئی ہے۔ حملہ آور کے ایک ساتھی کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ مقتول خضر زیادتی کے مقدمے کا مدعی تھا، ملزمان کی فائرنگ سے قتل ہوا۔ کراچی میں پولیس نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی۔ نیو کراچی صنعتی ایریا میں پولیس کا ڈاکوؤں سے سامنا، فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈکیت مارا گیا، دوسرے کو زخمی حالت میں پکڑ لیا گیا۔ سلمان لودھی کی رپورٹ۔ نیو کراچی صنعتی ایریا میں نجی بینک سے رقم نکلوا کر لوٹنے والے شہری سے ڈکیتوں کی واردات، پیچھے پولیس بھی آ گئی۔ فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں ایک ڈکیت مارا گیا، دوسرے کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ متاثرہ شہری کے مطابق وہ نجی بینک سے 9 لاکھ روپے رقم نکلوا کر نکلا ہی تھا کہ موٹر سائیکل پر ڈکیتوں نے گھیر لیا۔ دونوں بنٹو بھائی میرے آگے لگائی، سمجھو میرے کو بولنے لگے جو بھی ہے وہ دے، نہیں تو مار دیں گے۔ میں نے ایسی جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا، اتنے میں ڈکیتوں نے پولیس پر فائر کرے، ریٹرن پھر پولیس والوں نے پھر میری جان بچائی۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور لوٹا ہوا سامان برآمد ہوا ہے۔ ایسے ہی یہ بینک سے تھوڑا آگے فاصلے پہ گئے ہیں تو ان کو 4 افراد نے ڈکیتوں نے لوٹنے کی کوشش کی، ان کو روڈ پہ ہی روکا۔ اسی اسنا میں جو ہے گشت والے فوری طور پہ وہاں سے گزر رہے تھے، مقابلہ ہوا ان کا، اس میں سے 2 تو فرار ہو گئے اور 2 مقابلے میں جو ہے زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مقابلے کے دوران 2 ڈکیتوں کے ساتھی فرار ہو گئے جن کی گرفتاری کے لیے پولیس نے کوششیں شروع کر دی۔ کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر کارروائی کا سلسلہ جاری، صرف 3 روز کے دوران شہریوں کو 11,000 سے زائد ای چالان جاری کر دیے گئے۔
राहों पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान घर आने लगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 3 रोज में सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट न लगाने वाले ड्राइवर्स के किए गए, जिनकी तादाद 6000 से तजावज कर गई। ओवर स्पीडिंग करने वालों के 1700 से जायद चालान किए गए। मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट न पहनने वालों के 2000 से जायद चालान हुए। गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाते हुए मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर 550 से जायद शहरियों को चालान का सामना करना पड़ा। सिग्नल तोड़ने पर 800 चालान जारी किए गए। 60 किलोमीटर पर आवर जो है शारा फैसल पे और मेन रोडों की दर्जा अव्वल की जो सड़क होती है उसकी स्पीड लिमिट है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक डीआईजी ट्रैफिक समेत कई सरकारी अफसरान को भी चालान जारी किए गए। डीआईजी ट्रैफिक का चालान हुआ है, उनके ड्राइवर गाड़ी लेकर सरकारी निकल गए थे, सीट बेल्ट उन्होंने नहीं बांधा हुआ था। उसके अलावा 2 पुलिस गाड़ियों के और हुए हैं और 13 गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं जीएस नंबर के, उनके भी वो चालान जनरेट हुए हैं। शहरी कहते हैं हजारों के चालान और जुर्माने मोटरसाइकिल बेचकर ही अदा करने पड़ेंगे। 5000 देता, गरीब आदमी कहाँ से देगा 5000? स्कूटर बेच के देगा, क्या करेगा? ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि शहरी ट्रैफिक कानून पर अमल करें ताकि न सिर्फ हादसात की शरह कम हो बल्कि शहर में ट्रैफिक के निजाम को भी बेहतर बनाया जा सके। कैमरामैन शाहिद विरानी के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। ई चालान का मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि कीमती इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर इत्तलात सेंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हुकूमत चाहती है कि शहरी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। कवानीन तोड़ेंगे तो चालान तो होगा और चालान की रकम हुकूमत ने तय करनी है। तनकीद वो कर रहे हैं जिनके पास मैंडेट ही नहीं। ई चालान सिस्टम अवाम के नाम पर करोड़ों कमा रहा है। नई टेक्नोलॉजी भी ट्रैफिक पुलिस की करप्शन ना रोक सकी। ई चालान से खजाना भरा जा रहा है लेकिन सड़कों पर टैंकर माफिया को खुला रास्ता और पुलिस अहलकार अपनी जेबें गर्म करने में मसरूफ है। एमकेएम के अरकान असेंबली कहते हैं इंसानी जानें लेते टैंकर और डंपर पुलिस की सरपरस्ती में आज़ादी से घूम रहे हैं। गरीब शहरी मामूली गलती पर भारी जुर्माने अदा करने पर मजबूर हैं। कराची की एक 4.5 किलोमीटर की सड़क पर चांद से भी ज़्यादा गड्ढे हैं। पहलवान गोट से सफ़र करने वालों की गाड़ियां तबाह होकर रह गईं। कमर दर्द समेत मुख्तलिफ अमराज में भी मुब्तला हो रहे हैं। इंतज़ामिया ने शिकायतों के बावजूद मुकम्मल तौर पर आंखें बंद की हुई हैं। लोग मुर्तज़ा वहाब के बड़े बड़े वादों और दावों से मुकम्मल मायूस हो गए। राफे हुसैन की रिपोर्ट। अगर आपको पहाड़ों पर सफ़र करने का शौक है तो आपके लिए ये सहूलत मौजूद है। पहलवान गोट से सफूरा तक 4.5 किलोमीटर तवील गहरे गड्ढों और खड्डों पर मुश्तमिल बराए नाम सड़क पर, जहां आपको सेवरेज का बहता पानी दरिया का नज़ारा देगा। ये है 2025 का कराची। मुर्तज़ा वहाब ने भी बहुत सारे वादे किए हैं कि हम इसको बनाएंगे, लेकिन 1 साल हो गया लेकिन वो अभी तक यहाँ पे नहीं आए। यहाँ गाड़ियाँ चलती नहीं हिचकोले खाती हैं। ट्रैक इतना खराब है कि एक सड़क पर 2 तरफा गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। कोफ्त का शिकार शहरी जुमले कसते और इंतजामिया को कोसते नजर आते हैं। तारीख में आज तक ऐसे गटर नहीं बह रहे थे जो आज आप बह रहे हैं। 27 तो बहुत दूर की बात है, अभी से ये पैरस आपने बना दिया, हमें नजर आ रहे हैं ये पैरस आपके कारनामे। वारंट के दौरान जो 5 साल गुजरते नहीं है, पहले हमारे पास पहुंच जाते हो कि हमें वारंट की ज़रूरत है, हम तुम्हारा ये काम करेंगे ये काम करेंगे। अब कहाँ है, आप नज़र ही नहीं आ रहे ना। पीपी वाले आ जाओ बाहर रोड पे। 4 साल सर इस रोड को हो चुके हैं। हमने कमिश्नर कराची साहब को एप्लीकेशन दे के थक चुके हैं। मतलब कोई भी सर पुरसाने हाल नहीं इस रोड का। कराची को पेरिस बनाने वालों को शहरी जवाब देते हैं कि मुल्क में एक ऐसा शहर भी है जहां 3 माह में अंडरपास तामीर हो जाते हैं। यहाँ तो कई बरसों से पानी और सीवरेज की लाइनें तब्दील नहीं हो सकी। सिंध हुकूमत ने बड़े दावे किए थे कि हम इसको पेरिस बना देंगे और हर निज़ाम अच्छा कर देंगे, मगर अभी तक तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। 3 साल से यही इसी तरह खड्डे पड़े हुए हैं और यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे ऐसे रोज़ाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ाना कोई खड्डे में लेके कोई बच्चों को लेके गिर रहा है। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर सूरत हाल पर कहते हैं कि शहर को सुधारने की किसी की नीयत नहीं है। मेयर के पास सारे महकमे हैं, सिंध गवर्नमेंट के साथ है ना, वाटर बोर्ड है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उनके पास, सड़कें, ट्रांसपोर्ट सब उन्हीं के पास है। क्यों नहीं ठीक हो रही? विल नहीं है। 2024 में रोड सरकारी के नाम पर 2.5 अरब रुपए की रकम जारी हुई, लेकिन आज भी कराची की सड़कें इस खतीर रकम की मुंतज़िर हैं। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ राफे हुसैन, ARY कराची।
रावलपिंडी की मसरूफ कचहरी चौक से रोजाना लाखों गाड़ियां गुजरती हैं। ट्रैफिक का बोझ कम करने के लिए कचहरी चौक की रीमॉडलिंग मंसूबे का कुछ दिन में आगाज होगा। मंसूबे के तहत 3 अंडरपास और 3 फ्लाईओवर तामीर किए जाएंगे। मंसूबा 10 माह से कम मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। बाबर मलिक की रिपोर्ट। रावलपिंडी का कचहरी चौक, जहां से रोजाना तकरीबन 2 लाख से जायद गाड़ियों का गुजर होता है, रश के बाइस चौक में ट्रैफिक जाम और ताखीर रोजमर्रा का मामूल बन चुका है। ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था। यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक का इशू है और ये इशू इस प्रोजेक्ट के बगैर जो हल ही नहीं हो सकता है। ये रश नहीं होगी, फिर सही आसानी से बंदा गुजर सकेगा, ट्रैफिक टाइम की बचत हो जाएगी। कचहरी चौक रीमॉडलिंग मंसूबे पर 13 अरब रुपए की लागत आएगी। मंसूबे का आगाज आइंदा चंद रोज में किया जा रहा है। मंसूबे की मंजूरी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सरबराही में इजलास में दी गई। इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उन तमाम लोगों के लिए कि जिनका ये रास्ता है। मंसूबे के लिए मुतबादिल ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया गया। बिलबोर्ड और पैनाफ्लेक्स भी बना रहे हैं जो ये पोल्स के साथ भी हम डिस्प्ले कर देंगे। 28 से 30 हज़ार स्टूडेंट जो डेली आते हैं, तो उनके लिए मुतबादिल रूट दिए गए हैं। मंसूबे के तहत 3 अंडरपासेस और 3 फ्लाईओवर्स तामीर किए जाएंगे। मंसूबे की तकमील से तवक्को की जा रही है कि ट्रैफिक जाम का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल होगा। कैमरामैन जावेद अल्ताफ के साथ बाबर मलिक, ARY न्यूज़, रावलपिंडी। इस्लामाबाद में तुर्की के 102वें कौमी दिन पर पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जमहूरिया तुर्की की क़यादत और आवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा, इस्लामाबाद में तुर्की और पाकिस्तान के परचम लहरा रहे हैं। हमारे दिल तुर्क बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। तुर्की की तरक्की और खुशहाली का सफ़र काबिल फ़ख्र कामयाबियों से इबारत है। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुक़ात करीबी मजहबी सकाफ़ती रिश्तों से जुड़े हैं। तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। जंग हो, तबाहकुन ज़लज़ला हो या सैलाब, तुर्की मदद में हमेशा पेश रहा। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में 4 दिन में दुश्मन को सबक सिखाया। जंग के दौरान तुर्की की क़यादत एक चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। पाकिस्तान और तुर्की यकजान 2 ग़ालिब हैं। आज़रबाईजान टूरिज़्म बोर्ड और पाकिस्तान टूरिज़्म मार्ट के इश्तराक से कराची में रोड शो का इनेकाद किया गया, जिसमें दोनों ममालिक के ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रूहा फातिमा की रिपोर्ट। कराची के मकामी होटल में आज़रबाईजान टूरिज़्म बोर्ड और पाकिस्तान टूरिज़्म मार्ट के इश्तराक से मुनक्किद हुआ टूरिज़्म रोड शो, जहां दोनों ममालिक के दरमियान सयाहत के फरोग पर बात की गई। तकरीब में आज़रबाईजान से ताल्लुक रखने वाले ट्रैवल एजेंट्स का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती और मुआशी ताल्लुकात को फरोग देने में अहम किरदार अदा करते हैं। Want to appreciate ATB Azerbaijan Tourism Board and Pakistan Travel Mart for organization this event. पाकिस्तान टूरिज्म मार्ट की ऑर्गेनाइजर अदीबा खालिद का कहना था कि सयाहत के शोबे में ताउन न सिर्फ दोनों ममालिक की मईशत के लिए फायदेमंद साबित होगा, बल्कि अवामी सतह पर ताल्लुकात को भी बेहतर बनाएगा। बहुत सक्सेसफुल रोड शो जा रहा है। हमने इसका रोड शो लाहौर में कर चुके हैं और अभी ये जो रोड शो है ये आज कराची में है और एक और इनका रोड शो होगा वो इस्लामाबाद में है। आज़रबाईजान टूरिज्म बोर्ड पाकिस्तान के साथ सयाहती शोबे में इश्तराक के मजीद मौके पैदा करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ऐसे इवेंट्स मुनक्किद कर चुका है। कैमरामैन याकूब बल्ती के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। ARYB ग्लोबल की 5वें पाकिस्तान फ्यूचर ऑफ रिटेल बिजनेस समिट एक्सपो में बतौर आउटरीच पार्टनर शिरकत। अब नए ख्यालात, जदीद टेक्नोलॉजी और आलमी मौक़े पाकिस्तान के रिटेल सेक्टर को नई बुलंदियों तक ले जा सकेंगे। इशरत खान की रिपोर्ट। ARYB ग्लोबल पाकिस्तान के सबसे नुमाया तिजारती प्लेटफॉर्म 5वीं पाकिस्तान फ्यूचर ऑफ रिटेल बिजनेस समिट एक्सपो का आउटरीच पार्टनर बनकर एक नए दौर की बुनियाद रख रहा है। अब नए ख्यालात, जदीद टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी मौक़े पाकिस्तान के रिटेल सेक्टर को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। प्रोडक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट हो, कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट हो, ताकि हम इंपोर्ट कम करें और हम अपनी कैपेसिटी बिल्ड करके एक्सपोर्ट ज़्यादा करें और रिटेल ड्राइव करें। शॉपिंग और बाइंग वो चीज़ है जो हर इंसान को ज़िंदगी के हर वक्त में ज़रूरत होती है और हर तरह की चीज़ों की, तो लिमिटलेस है। ARYB ग्लोबल न सिर्फ 80% सेव गोल्ड की सहूलत दे रहा है, बल्कि रिटेल की दुनिया में नई तब्दीलियों का भी ख्वाहां है। 80% का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, ग्रोसरी, गारमेंट्स,
ज्वेलरी, काफ़ी चीज़ें हमारी वो इसके साथ कोलैबोरेट हुई हुई हैं। जो भी आप बाय करेंगे ARY चेस के स्टोर पे, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो नॉन फूड हो, चाहे वो कोई भी आइटम हो, आप उस पर परचेज करते हुए, आप शॉप करते हुए सेव कर सकते हैं गोल्ड स्ट्रेट अवे, जो कि आपके फ्यूचर के एसेट्स में कन्वर्ट होता है। ARY भी ग्लोबल का ख्वाब रिटेल इकोसिस्टम में जिद्दत और लचक पैदा करना है ताकि पाकिस्तान को आलमी तिजारत के नक्शे पर एक मजबूत मकाम दे सके। कैमरामैन ज़िशान मरगूब के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए ARY न्यूज़।